everyone is having this copy, soft copy में है Yes, तो भी ma'am. चलेगा. Okay, so we will require this, and after that the steam table. Now, first, today in the today's session, I know you are in the BE, but I will be starting the session from how the steam is generated to the types of steam, how to read the steam table, and then we will move towards how which type of numericals will come into the exam. Okay, so the very basic thing, I will now stop sharing my screen from the laptop and I will start from my mobile. Just take a minute. Yes, everyone. Can you see the screen now? Yes, ma'am. Yes. Am I audible? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Anyone? Gani, Menon, or Aziz? Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Okay. Now, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अभी मुझे आप लोगों की आवाज सुनाई दी. Okay. Now I will start sharing my camera screen. Can you see the diagram now? Please respond yes, no. Yes. Otherwise, Yes. क्योंकि कैसे है? When I will say it, I will not able to see my screen. Okay. So if anything happens, just respond immediately so that I can correct that error. Okay. तो ये डायग्राम आप लोगों ने इसके पहले भी स्टडी किया होगा. What is this diagram? Okay. आपको मैं क्वेश्चन नहीं पूछती. I will directly start now. So this is the temperature versus heat addition diagram. My voice is clear? Yes, ma'am. ओके सी तो हमारा जो पहला कंसेप्ट था वी हैव स्टार्टेड विद द स्टीम जनरेशन पार्ट मतलब हमने बॉयलर जो स्टार्ट किया डायरेक्टली वी हैव स्टार्टेड विद द that we just seen the definition of boiler that it is a steam generating device. Boiler is a steam generating device, and we just seen that how many types of boilers were there, what are the different mounting and accessories. But what is the actual principle or what is the actual part when which means how the water is get converted into steam, that part is nothing but the boiler performance part. And to know or to compare the performance of boiler, we should be knowing the few parameters of the boiler performance. Now so there is a one part I will show you in the screen now. See, now my screen is visible. So this term equivalent evaporation. This equivalent evaporation is a term which will be used to compare the same capacity boilers. But even if the boiler types are different, but their capacity is same, that means suppose मैंने एक कॉन्सन बॉयलर लिया है जिसकी capacity है 16 bar, and if I have taken the Lancashire boiler which is also having the 16 bar capacity, मतलब दोनों की स्टीम जनरेट करने की कैपेसिटी एक ही है, बट जो हम स्टीम का कन्वर्जन कर रहे हैं that is completely different. The way of converting the water into steam is completely different. Okay, so how should I compare the two boilers? On what basis I will compare that boiler? So that term is nothing but the equivalent evaporation. तो इसकी definition क्या है वो हम बाद में देखेंगे. Firstly, this is the our final aim to study the definition of equivalent evaporation. But before that, we have to see actually how the
water is being converted into the steam. Okay, so अब initially हम start करते हैं. Suppose there are three states. Firstly, solid, liquid and gases. Okay, ये तीन states है. Now अगर solid से liquid में conversion हो रहा है, if I want to convert anything from solid to liquid or from liquid to gas, if suppose I have consider the कैमरा स्टैंड universal बाय पे thing चला that गया. is मैम एक्चुअली मैम आपका कैमरा yes, sorry. Now यस. okay, so solid to liquid convert करना है. Take the standard example of water, ice, water and vapor we will be considering. These are the three forms, right? The water solid form is nothing but the ice, the water gaseous form is nothing but the vapor. Now if I have to convert the ice into the liquid, क्या करते हैं हम लोग? What is the basic requirement? Heat. We are Melt supplying the something. heat, right? So when you are supplying the heat to the ice, which is in the solid state, it will start converting into the water. But when that will happen, see, when the ice has been made below 0 degrees Celsius, the ice has been made, right? So suppose initially if your ice is having -4 degrees Celsius, when you start heating the ice, when the ice will start melting only after reaching to the 0 degree Celsius. जब वो -4 से लेके 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, उसके बाद ही उसकी फेज चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट? नाउ आप मुझे क्या करना है, ये जो -4 से लेके 0 तक के जो मैंने हीटिंग किया है उसको हम बोलेंगे सेंसिबल हीट. Okay, same we will apply to the water to vapor converter now. Now we will see actually how the water is being converted into the steam. Now, initially suppose my water which is at atmospheric temperature that is at 27 degrees Celsius. Okay, अभी मेरा initially 27 degrees Celsius वाला water है. What I will do? I will start heating the water. अब उसका steam conversion कब होगा आप बताओ मुझे? When the water will start converted into the steam? Yes. When the water will start converted into the steam. हीट एडिशन पे मैम. जब उसके No, I am टेम्परेचर not से asking the ऊपर heat बॉइलिंग addition. I am asking the temperature. इसका कुछ से 100 डिग्री temperature सेल्सियस. है. 100 डिग्री हम बोल- सेल्सियस. अब बॉइलिंग पॉइंट. Okay. So what is that? Okay. So what is that 100 Boiling degrees point. Celsius? That is a saturation or phase change temperature of the water. ये 100 डिग्री सेल्सियस मिल्क के लिए भी एप्लीकेबल होगा क्या? No. या फिर Like, केरोसिन different के लिए भी होगा. एप्लीकेबल होगा क्या? या डिफरेंट फिर कोई लिक्विड ऑयल डिफरेंट के लिए सैचुरेशन एप्लीकेबल होगा? राइट. सबका अलग है. Every substance जो है it has a its separate boiling point or saturation temperature, right? So water का जो saturation temperature है that is 100 degree Celsius. Okay, so when your water will come at 100 degree Celsius, then it will start changing its phase. अब ये जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ that initially your water is at 27 degree Celsius. अब यहाँ पे इसकी phase क्या है? ये कौन से फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, राइट? तो उसको हम फ्लूइड नाम देते थे. सो वी विल यूज F symbol फॉर फ्लूइड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिसन केयरफुली. सो इन दिस फेज योर वाटर इज इन द फ्लूइड फॉर्म, दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म. व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग, when the heat is being started to added in the liquid, its temperature will rise. अब ये टेम्परेचर कौन से पॉइंट तक राइज होगा? उसके सैचुरेशन पॉइंट तक, दैट इज एट 100 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद उसमें कोई भी हीट एडिशन नहीं होगी, राइट? मतलब हीट एडिशन इवन इफ यू सप्लाई इट विल नॉट शो एनी चेंज इन द टेम्परेचर. अब मेरा सपोज 1 kg ऑफ माई वाटर, मैंने 1 kg वाटर लिया है, 1 kg ऑफ वाटर विच इज एट 27 डिग्री सेल्सियस. तो ये 1 kg ऑफ वाटर को 27 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक रीच करने के लिए जो हीट मैंने यूज की, दैट हीट इज नोन एज सेंसिबल हीट. ओके, अब ये जो सेंसिबल हीट है इसको हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. वन इज डायरेक्टली यू कैन यूज mCp डेल्टा टी फॉर्मूला. अब m क्या है? यहाँ पे मास ऑफ वाटर है, Cp इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर. अब ये स्पेसिफिक हीट क्या होती है मैं इसको फिर से डिफाइन नहीं करूंगी, बिकॉज यू आर नोइंग दैट. व्हाट इज स्पेसिफिक हीट?
what is specific heat? It is the heat which is present inside that component itself. मतलब naturally जो कोई भी एक सब्सटेंस है तो उसके अंदर जो नेचुरली जो हीट है दैट इज नथिंग बट द स्पेसिफिक हीट. अब जो वाटर है उसके लिए वैल्यू फिक्स है 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन. ये लिख के रखो आपकी बुक में दैट ये आपको ऑल द टाइम यूज करना है while solving the numerical that the value of specific heat for water is 4.18 kilojoule per kg. Now what is this delta T? Temperature What is difference. this delta T? Right. So which temperature difference you will take? The saturation temperature minus the initial temperature of water. Right? Yes. Okay. So this 100 degree Celsius to 27. अगर मैंने 100 minus 27 into mCp कर लिया so I will be calculating my sensible heat. So इसके लिए in the steam table we will be using the notification HF. H is for the enthalpy, F is for the fluid because this is a sensible heat. So यहाँ पे आपका जो water है वो fluid form में है. So we are using this symbol HF. ठीक है. अब मेरा सिर्फ 1 kg of water heat हो गया है. I have to convert that whole water into steam. So another phase आएगा, एक point आएगा that is the phase change point. यहाँ से आपका पूरा का पूरा जो 1 kg of water है that will start converted into the steam. अब वो पूरा का पूरा सपोज आपने एक वेसल रखा है जिसमें 1 kg वाटर है, इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया तो ये पूरा का पूरा 1 kg वाटर 1 kg ऑफ स्टीम में जब कन्वर्ट हो जाएगा then we can say the whole process is evaporation process is being completed. अब जब ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो रही है इवेपोरेशन की तो आपका जो वाटर है वो कौन से फॉर्म में है? इट इज इन द फ्लूइड प्लस गैसेस फॉर्म. एम आई राइट? Yes. ओके. सो यहाँ पे जो एंथैल्पी आएगी उसका हम नोटेशन क्या यूज करेंगे? HFG. सो द हीट which is there in the sensible form we will be giving the notation HF, and the heat which is there in the latent heat form we will be using the notation HFG. ठीक है. अब यहाँ से इस पॉइंट पे आके मेरी whole steam will be get converted into my whole water is being converted into water. अगर मैं इसके आगे भी हीट सप्लाइड अगर करती जाऊंगी तो क्या होगा? What will happen? Entire water will get converted into steam. वो steam हो गया. Entire water is get converted into steam. Even if I am supplying the heat, what will happen? Superheated, man. ये हाँ, Superheated. ये जो लाइन दिख रही है स्ट्रेट लाइन, this line is indicating that only temperature rise will takes place. There is no phase change after that. मतलब steam के बाद कोई phase है ही नहीं. Steam is the last phase. So इसीलिए इस पॉइंट के आगे जो भी हीटिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर हीटिंग. एंड हाउ वी विल कैलकुलेट दिस सुपर हीटिंग फेज? जस्ट बाय अगेन mCp डेल्टा टी फॉर्मूला. मतलब सपोज इस पॉइंट तक रीच होने के बाद मेरा स्टीम का टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस हो गया है तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इनटू ms मास ऑफ स्टीम इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम. इफ आई एम Ma'am, डूइंग camera. देन Ma'am, camera is on standby. yes. नाउ Yes. हाँ, अभी इतना सब बताने के बाद आपको समझ में आ रहा है जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ? दिस इज रियली बेसिक एंड फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल हमें ये सब पता होना चाहिए. समझ में आ रहा है सबको ये जो चल रहा है? Yes, ma'am. ओके. तो अभी ये मैंने जो आपको कैलकुलेशन बताया दिस इज बाय यूजिंग फॉर्मूला. ओके. तो अब हमारे पास डायरेक्ट रेडीली वी विल बी हैविंग स्टीम टेबल विथ अस. ओके. तो मैं अभी आपको यहाँ पे स्टीम टेबल शो करती हूँ. अभी इसमें से वैल्यू आपको नहीं दिखेंगे. आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू. जस्ट सेकेंड. आई विल चेंज द स्क्रीन.
See, only telling you the formula is not the aim not the behind aim this. behind कि this. मैं सिर्फ Ma'am, कि it's आपको मैं सिर्फ echoing. फॉर्मूला आपको बता के फॉर्मूला आप बता के न्यूमेरिकल हम ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व ऐसे करके सॉल्व बता करना सकती हूँ, बता सकती हूँ, बट एक बार आपको एक Amruta बार ma'am. आपको उसके उसके का पीछे का जो मेन जो मेन उसका जो उसका बोलते जो हैं ना कि बोलते आपको हैं ना कि रूट आपको समझ में रूट आ गया समझ कि में आ क्या गया है, कि क्या है, इट इज then it is माय वॉइस my इज voice is क्लियर. clear. Excuse me, ma'am. It's echoing, ma'am. Your voice is echoing. ओके नाउ. It's echoing. Still, it's echoing. मैम आपके मोबाइल की डिवाइस का ऑफ है. यस यस कर दिया नाउ. Yes, ma'am. ओके सॉरी, ये बहुत कंफ्यूजन है, प्रैक्टिस होने तक ऐसा ही होगा. ओके सो अभी जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया दैट बाय यूजिंग द फॉर्मूला एमसीपी डेल्टा टी, बट उसका एक इजी सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है एंड दैट इज नथिंग बट द स्टीम टेबल. अब स्टीम टेबल के अंदर क्या होता है, उसका नाम ही है दैट रिलेटेड टू स्टीम एवरीथिंग एवरी प्रॉपर्टी. सी, अगर हम जो स्टडी कर रहे हैं वाटर एंड स्टीम का, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास 6 वेज है दैट वी शुड नो द प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी ऑफ दैट स्टीम. ओके, तो ये जो सारे उसकी प्रॉपर्टीज है दैट आर एनलिस्टेड इन द स्टीम टेबल, ये स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करके इसमें प्लेस किया गया है. नाउ पहले तो स्टीम टेबल रीड कैसे करना है. स्टीम टेबल 2 बेसिस पे रहता है, दिख रहा है सबको. द फर्स्ट कॉलम इज टेम्परेचर, राइट. यस, दिख रहा है सबको. Yes, ma'am. हाँ, एंड द सेकेंड इज प्रेशर. बट वी विल बी यूजिंग ये एक टाइप का टेबल है, इसके आगे जो कॉलम रहेंगे वो सब जगह पे सेम होंगे. दैट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस, देन दिस इज सेंसिबल हीट, लैटेंट हीट एंड दिस इज टोटल एडिशन. आप ये दोनों को ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे रहेगी. ये करके देखो, अगर एक एग्जांपल देखना है तो 42 प्लस दिस 2477.9, इफ यू डू दिस देन द एडिशन विल बी हियर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो दोनों HF प्लस HFG है, इफ द योर स्टीम इज ड्राई देन दिस डायरेक्ट HG विल गिव यू द एंथैल्पी ऑफ टोटल स्टीम. वन समवन इज नॉट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. कौन है ये? Sorry, ma'am. It was me. ओके, नाउ हमें जो टेबल यूज करना है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर यूज करना है, क्योंकि जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं, वो उसमें आपको प्रेशर दिया गया रहता है, नॉट टेम्परेचर. सो वी विल बी शिफ्टिंग टू द प्रेशर फर्स्ट कॉलम टेबल. तो अगर आप पेज नंबर 15 पे जाओगे, मतलब जो पीडीएफ का 15 नंबर पेज है, या तो यहाँ पर आप देखोगे here the first column will be pressure, next will be temperature. ठीक है. Now I will give you one example. Just tell me, everyone is having steam table. Yes, ma'am. Okay, मैम वो टेबल का नाम क्या है लेकिन? steam table ही है. नहीं, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम क्या है, मतलब वो स्पेसिफिक पेज पे क्या नाम है उसका टेबल का? आई एम नॉट गेटिंग. अच्छा, वैसा कुछ नहीं है. ये देखो, आप पेज नंबर खोलो ना सीधा, टेबल 2 सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम प्रेशर टेबल. पेज नंबर क्या है इसका? 6-7 नंबर. बुक का पेज नंबर 7 एंड पीडीएफ का पेज नंबर 15. Okay, got it. हाँ, सो जस्ट टेक वन एग्जांपल. ये 0.1 बार प्रेशर पे सपोज मेरा वाटर है. सो एट 0.1 बार द सैचुरेशन टेम्परेचर फॉर द वाटर इज 45.83. तो ये 0.1 बार प्रेशर के लिए ये सारी की सारी उसकी आगे की प्रॉपर्टीज आ गई. तो हम लोग क्या देखते हैं अभी, वी विल सी द इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 1.01325 बार. एरो दिख रहा है मेरा स्क्रीन पे? यस एवरीवन? Yes, yes. हाँ, सो ये 1 बार हो गया और उसके बाद 1.01325. दिस इज आवर एग्जैक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो आप यहाँ पे अगर देखोगे, सो एट दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूर सैचुरेशन टेम्परेचर फॉर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे आपको ये सभी वैल्यू मिलेगी. उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम इतना होगा, देन उसको एंथैल्पी इतनी लगेगी 419, देन दिस इज द लैटेंट हीट and this is the total heat required to convert the atmospheric
water, atmospheric temperature, pressure water to get converted into steam. तो अब सिर्फ हमें क्या करना है, हमें न्यूमेरिकल में प्रेशर प्रेशर उन्होंने दिया होगा, we have to just check for that pressure what are the different values of that steam. इतना clear है सबको? Yes, ma'am. Okay. Now I will again shift to the that handwriting part. स्क्रीन दिख रहा है अभी सबको? Yes, ma'am. ओके, नाउ मुझे आपको ये बताना है कि हम लोगों ने कल देखा दैट इफ वी इनकॉर्पोरेटेड द एक्सेसरीज इन द बॉयलर देन देयर विल बी इंक्रीज इन द एफिशिएंसी। अब उसका मतलब क्या होता है वो आपको शॉर्ट में बताती हूँ। दैट अभी सपोज मैंने ये इनिशियल कंडीशन बताई थी, वाटर इज एट 27 डिग्री सेल्सियस, बट इफ सपोज बाय इनकॉर्पोरेटिंग द इकोनोमाइजर, if the initially my temperature of water is suppose initially the temperature of my water is suppose 60 degrees Celsius, then is there same condition, मतलब जो हीट लगेगी उस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए वो सेम रहेगी क्या? नहीं। नहीं। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दैट आई विल शो यू। अभी ये टेम्परेचर का कॉलम है, राइट? दिस वाई एक्सिस इज शोइंग यू द टेम्परेचर। अब मैंने इनिशियली क्या बोला, माई वाटर इज एट 60 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हमने 100 मार्क किया है। आई थिंक मेरे बोलने के बाद मेरा हैंड मूव होता है, एम आई राइट? Yes, ma'am. There's a delay. ओके, सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पे आपका 100 डिग्री सेल्सियस है और उसके नीचे सपोज यहाँ पे समथिंग 60 है। सो नाउ फ्रॉम 60 आई हैव स्टार्टेड दिस प्रोसेस, so this is for sensible heat. At this point it will get converted into steam and again from here it will be get superheated. तो जैसे जैसे मैं 100 सेल्सियस की तरफ जा रही हूँ, तो what will happen, my latent heat required will get reduced. अगर ये 70 है तो इसके भी ऊपर जाएगा and this column will rise like this. और अगर मैंने ये सारे एंड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन किया तो आई विल बी गेटिंग वन लाइन, और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ सैचुरेशन लिक्विड लाइन। अगर मैंने ऐसे ही सारे लाइंस को ज्वाइन किया तो आई विल बी गेटिंग सैचुरेशन लिक्विड लाइन, ठीक है? और ये एक पॉइंट पे जाके कहीं पर तो रुक जाएगी ये लाइन, राइट? और उसी से आगे मेरा जो स्टीम वाला फेज है वो भी उसी सेम होगा। तो ये जो मेरा लास्ट पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। ये जो पॉइंट रहेगा क्रिटिकल पॉइंट, इसका मतलब क्या है, एट क्रिटिकल पॉइंट if you initially supply your water, the initial condition of your water is at critical point, then your water will be get converted into just within a second into the steam. अगर मेरी input condition वैसी है तो can anyone tell me what is the value of critical pressure and critical temperature? Anyone is having idea? कितना रहता है ये वाटर के केस में, ये कितना रहता है क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर? 110. यस, 110 क्या टेम्परेचर की प्रेशर? Degree Celsius. The pressure. Temperature. Okay, so that is now homework for you, not right answer, but also ओके। तो आप लोग मुझे नेक्स्ट लेक्चर में ये बताओ क्रिटिकल प्रेशर और टेम्परेचर कितना रहता है, ठीक है? नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीम नाउ, ठीक है? दिस इज रियली डिले जो मैं बोल रही हूँ और यहाँ पे हो रहा है। ओके, सो फर्स्टली
your water will be get converted into steam. So there will be three types of the steam. First is the wet steam. दिख रहा है जो मैं लिख रही हूँ? Yes, ma'am. Second is the dry steam, and third is the superheated steam. ओके, तो अब इसके तीन सिंपल फॉर्मूले सिर्फ आप लोगों को याद रखने हैं फॉर आवर कैलकुलेशन. दैट इज वेट स्टीम की डेफिनेशन क्या है? इफ द स्टीम विच इज कन्वर्टेड, मतलब जो वाटर, इफ द वाटर इज गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम but it contains few particles of the moisture, then that steam is known as a wet steam. अब इसका कैलकुलेशन किस तरह से है? So ये जो डायग्राम हमने देखी अभी, दिस डायग्राम, तो यहाँ पे आपका सेंसिबल हीट आई हैव गिवन यू द नोटेशन HF, Horizon standard. right? This no, It came just now, ma'am. okay. So this sensible heat we have given notation HF, right? And latent heat has a notation HFG. So if we add this HF plus HFG, this will give us the total enthalpy or the total heat. But ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रहेगा सबको, H इज इक्वल टू HF प्लस HFG. ओके, अब इसमें ट्विस्ट क्या आएगा? If your steam next पेज आ गया. Okay. So if the steam is wet, then it contains some moisture, and that is we have to represent by the dryness fraction X. So HF तो है ही sensible heat plus X into HFG. So this will be the formula to calculate the enthalpy of wet steam. Okay, ये X क्या है? X is the dryness fraction, which is mass of steam upon mass of steam plus mass of water. It will be always less than 1. हमेशा एक से उसकी वैल्यू कम रहेगी. My voice is audible to all? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. तो ये जो X की वैल्यू है, अगर ये X 1 हो गया, इसका मतलब क्या है? Your steam is being converted into dry steam. मतलब अगर मैंने wet steam को if I supplied few heat, then it will be get converted into dry steam. And now the formula to calculate the enthalpy of dry steam is only HF plus HFG. This steam is also known as dry steam or saturated steam. ओके, इसका दूसरा नाम है सैचुरेटेड स्टीम. फॉर्मूला समझ में आ रहे हैं सबको? यस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. नाउ अब जो सुपर हीटेड स्टीम है वो कौन सी है? जो ड्राई स्टीम है, अगेन आई एम हीटिंग दैट ड्राई स्टीम, देन दैट स्टीम विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू सुपर हीटेड. तो उसके लिए किस तरह से फॉर्मूला लिखना है? जो ड्राई स्टीम के लिए हीट लगी वो हीट तो आएगी ही इसमें, दैट इज एंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम प्लस जो सुपर हीटेड है. नाउ सुपर हीटेड मतलब क्या है? अभी मास ऑफ स्टीम इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इनटू T superheated minus T saturation. So this is the formula to calculate the enthalpy of superheated steam. If you just see the formula list which I have shared with you, I will show you it on the screen. Is it visible? Yes, is it visible? Yes, ma'am. Okay. So यहाँ पे जो लिखा है मैंने, यहाँ पे देखो, this is the first thing for dry saturated, for wet steam and for superheated steam. तो ये तीन फॉर्मूले मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं. ये फॉर्मूले कैसे आए ये भी मैंने आपको बता दिया अभी. ठीक है,
अब इसका यूज कैसे करना है वो हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। इतना पार्ट समझ में आ गया सबको? यस एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. Okay. Okay. So after completion of this basic concept, we have to just learn the one basic thing, that is equivalent evaporation. Now I will just read the definition for equivalent evaporation. Just listen carefully. यहाँ पे मैंने फॉर्मूला तो ऑलरेडी है आपके सामने in the formula list, but what is the concept? I will read it. The quality of dry saturated steam that could be generated by the boiler per unit time from water at 100 degrees Celsius is known as equivalent evaporation. This is the Book's definition. इसका सिंपल मतलब ये है कि जितना आपने फ्यूल सप्लाई किया है बॉयलर को, so within a how much time and by how much rate your boiler is producing the steam, that rate is known as equivalent evaporation. इसलिए मैंने जो आपको वो पहले एग्जांपल बताया कंपैरिजन का, कि एक कॉन्कन बॉयलर है और एक लैंकैशायर बॉयलर है, दोनों की कैपेसिटी सेम है, दोनों को मैंने सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई किया, सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल सप्लाई किया, बट स्टिल द स्टीम प्रोडक्शन रेट फॉर बोथ द boiler is different. That is because of the design of that boiler, and so the equivalent evaporation parameter is also different. तो उसका फॉर्मूला क्या है देखो, equivalent evaporation फॉर्मूला दिख रहा है सबको? I will write it on the book. It is denoted by ME. Equivalent evaporation is denoted by ME, and it is, I will write briefly, mass of steam. Now, I will explain you the numerator part first. MS is the mass of steam generated per hour. तो MS का जो यूनिट होगा, this is MS dot kg per hour. ये रहेगा इसका यूनिट, और we can say kg per minute or second also. H is the enthalpy of steam generated. मतलब ये in general notification है steam का. If your steam is wet steam, you have to use here formula of wet steam for the H. If the steam produced by boiler is a dry steam, then you have to use the formula of H for the dry steam. If your steam generated by boiler is superheated, then you have to use the superheated formula over here. तो ये H क्या है सबको समझ में आ गया है इस केस में? Yes? Yes, ma'am. Okay. So minus HF1. Now what is this HF1? HF1 is the enthalpy of water at inlet. मतलब जो हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं इनिशियली बॉयलर को, तो उसकी एंथैल्पी है. अब इसकी वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी? डायरेक्टली स्टीम टेबल से मिलेगी. मतलब सपोज वाटर का जो इनलेट टेम्परेचर है इट इज गिवन 20 डिग्री सेल्सियस, तो आपको सिर्फ क्या करना है, 20 डिग्री सेल्सियस के एंथैल्पी के कॉलम में जाना है और एफ वाला सेक्शन देखना है, HF वाला. तो उस 20 डिग्री सेल्सियस से जो HF की वैल्यू रहेगी वो रहेगा आपका HF1. वाई वी हैव यूज दिस HF1 नोटेशन? बिकॉज 1 या फिर आया कुछ भी याद रखो, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ वाटर एट इनलेट. तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि जो मैंने वाटर सप्लाई किया था, जो हीट सप्लाई की थी, उसका किस तरह से स्टीम में कन्वर्जन हुआ. एंड व्हाट इज द इनपुट टू दिस? वी हैव टू कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड, राइट? तो इसका स्टैंडर्ड क्या है? इक्विवेलेंट इवेपोरेशन एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है, राइट? तो वो ऑल ओवर आपको कंपेयर करना है. तो उसके लिए मास ऑफ फ्यूल इनटू द स्टैंडर्ड एंथैल्पी. अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ. वी हैव टू राइट दिस फॉर्मूला एज MA into H minus HF1 upon 2257. Now this value 2257 is the standard enthalpy of the water at 100 degrees Celsius. मतलब 1 kg of water को 1 kg of steam में कन्वर्ट करने के लिए 2257 और
वी कैन राइट इट एट डायरेक्टली 2260 किलो जूल इतनी एनर्जी की जरूरत रहती है। तो ये स्टैंडर्ड है, इसको हमने हमारे बॉयलर के साथ डिवाइड करके वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा, अगर मैंने ये एमई मैंने सपोज कॉन्कर्न बॉयलर के लिए फाइंड किया तो उसकी एक वैल्यू अलग आएगी। अगर मैंने सेम फॉर्मूला का यूज करके अगर लैंकाशायर बॉयलर का इक्विवेलेंट इवेपोरेशन निकाला तो उसकी वैल्यू अलग आएगी। तो जितना इक्विवेलेंट इवेपोरेशन रेट ज्यादा है उतना आपके बॉयलर का परफॉर्मेंस क्या है, ज्यादा है। ये हमें समझ में आ जाएगा उससे, ठीक है। सो दिस इज अ वन कंपैरिजन पैरामीटर। So for the definition, I have explained you the concept. Formula is also explained to you. Now the next term is factor of evaporation, FE. तो अगर ये जो ME का फॉर्मूला है इसमें से आप इस MA को अगर रिमूव कर दोगे तो द रिमेनिंग इज H minus HF1 upon 2257 and this is the factor of evaporation. ये जो कंसेप्ट है that is known as factor of evaporation. ठीक है, आप सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखो। ओके, ये समझ में आ रहा है सबको फॉर्मूला? एवरीवन? यस? यस हो मैम। गए क्या सब लोग? नो मैम। दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप आंख बंद के कौन सा भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपको ये एंथैल्पी क्या है, किस चीज का नोटेशन क्या है, यही अगर समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नाउ द लास्ट, कैमरा ऑफ हो गया? ओके, नाउ द लास्ट थिंग दैट इज द बॉयलर इफिशिएंसी। ये तीन ही फॉर्मूले आज हमें देखने हैं और ये तीन ही फॉर्मूले यूज होते हैं बॉयलर की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। ओके, so this efficiency of boiler is again nothing but output upon input. But what is the output of any boiler? क्या आउटपुट है बॉयलर का? Yes, Steam. what is the output of boiler? Steam, right? Steam. तो कितनी मास ऑफ स्टीम जनरेट हुई? So ms into what is the enthalpy required to convert that steam. Okay, so this is the output of any boiler. And what is the input? I have supplied mass of fuel. So mf into its calorific value. अगर मैंने कोल सप्लाई किया है तो उसकी कैलोरिफिक वैल्यू, अगर कोई लिक्विड फ्यूल सप्लाई किया है सपोज 5 लीटर इंटू इट्स कैलोरिफिक वैल्यू। अगर मैंने 10 kg ऑफ कोल सप्लाई किया है तो 10 kg कोल इंटू इट्स कैलोरिफिक वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ बॉयलर एफिशिएंसी। क्लियर है सबको ये तीन फॉर्मूले? यस एवरीवन? एनी डाउट टिल नाउ? नो मैम। डाउट? ओके, तो कैन वी स्टार्ट वन न्यूमेरिकल? क्योंकि आज के लेक्चर के बाद कंटिन्यू 3 दिन लेक्चर नहीं है, so there will be a huge gap between this concept and still we have 15 minutes. So what I will do, I will just take one simple numerical today and I will give you. Yes, Someone has raised hand. oh anyone is having doubt? See, मैं मोबाइल मेरा हाइट पे है और मैं नीचे बैठी हूँ, so I can't see screen. आप लोगों को अगर डाउट है सीधा अनम्यूट करो और पूछो। Yes, can we start the numerical? Yes ma'am. It is not a difficult numerical. Okay, so please everyone open your question bank and in that see the numerical number 6. Wait, let me check the number. Sorry, 5. Numerical number 5. I will kept it here also. Okay, what I will do, I will stop sharing the screen. मिलेगी? मैं इसका YouTube पे ये डालूंगी and I will share it the link with you. Okay? Okay. Okay, first we will read the numerical. आवाज आ रही है ना मेरी? Yes. Yes? Okay.
तो अभी हमने ये 3 फॉर्मूले देखे किस तरह से आए H के. देन वी हैव सीन द इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का फॉर्मूला एंड इट्स डेफिनेशन, फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन एंड बॉयलर एफिशिएंसी. ठीक है. नाउ वी हैव टू सी द न्यूमेरिकल नंबर 5. ओके, इट्स अ रियली सिंपल न्यूमेरिकल. दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? The following readings were obtained during a boiler trial of 6-hour duration. Mean steam pressure is equal to 12 bar. Mass of steam. अब नाउ मैं अभी जैसे जैसे न्यूमेरिकल रीड करूंगी आपको एक एक टर्म बताते जाऊंगी. आप आपके वर्ड में उसको कैसे भी लिख के लो. सी नंबर 1, जो भी मीन स्टीम प्रेशर दिया है, मीन स्टीम प्रेशर, तो उस प्रेशर के लिए आपको स्टीम टेबल के अंदर सारी स्टीम की प्रॉपर्टीज को देखना है. दैट मीन्स फॉर दिस न्यूमेरिकल यू जस्ट हैव टू सी द एट 12 bar pressure what are the different properties of steam like enthalpy, entropy, temperature, whatever is needed. Okay, so the mean pressure of the steam is 12 bar. The mass of steam generated, जो steam generate हुई है वो कितनी है? 40,000 kg. My voice is clear? Yes, ma'am. Okay. Then mean dryness fraction is 0.85. Now number 1 जो काम होता है कोई भी न्यूमेरिकल में, that is identifying the type of steam. उस स्टीम को आइडेंटिफाई करना ये सबसे बड़ा काम रहता है. तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उस स्टीम को? अगर न्यूमेरिकल में ड्राइनेस फ्रैक्शन मेंशन है, दैट मीन्स वो कौन से टाइप की स्टीम होगी बताओ? Wet steam. राइट, इट इज अ वेट स्टीम. सिंपल. ओके, अगर उस न्यूमेरिकल में सुपर हीटेड टेम्परेचर दिया है, देन वो कौन से टाइप की स्टीम रहेगी? Saturate. Superheated. सुपर हीटेड. राइट. तो इसी तरह से आपको क्या करना है? फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्टीम. तो उससे आपको इजीली आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये पिक्चर आ जाएगा. नेक्स्ट इज द मीन फीड वाटर टेम्परेचर. अब ये क्या है बताओ आप? 30 डिग्री सेल्सियस. इससे क्या पता चलेगा? Inlet. या बट इस 30 डिग्री कौन सा? HF1. HF1. करेक्ट. सो जो मीन फीड वाटर टेम्परेचर रहेगा उससे आपको क्या पता चलेगा? व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ द वाटर. मतलब एट 30 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम स्टीम टेबल you have to check the enthalpy of fluid. HF की वैल्यू वहां पे देखनी है which is equal to HF1. Nextly, coal used is 4000 kg. तो क्या है ये? coal used कौन सी वैल्यू गिवन है? Mass of the fuel. Yes, क्या है? Right, this is mass of fuel, MF. Okay, and CV of coal directly given, so its CV is given 33400 kilojoule per kg. Now we have to calculate factor of equivalent evaporation. That is, we have to calculate the FE, then equivalent evaporation from at 100 degree Celsius and efficiency of the boiler. Okay. Now I will stop sharing the screen now. We will directly start solving it on the paper. आप भी आपका नोटबुक निकालो and न्यूमेरिकल दिखा कि नहीं सबको? यस? नो मैम. अरे मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं किया, सॉरी. जस्ट सेकेंड. आई हैव ओपन डेट. मुझे लगा कि स्क्रीन शेयर हो गई है इसलिए मैंने ब्लाइंडली स्टार्ट कर दिया. ओके, नाउ वी कैन सी न्यूमेरिकल नंबर 5. ये मैंने अभी रीड किया आपके सामने. अभी दिख रहा है? यस मैम. हाँ. नाउ पहले क्या काम करो, ये स्क्रीन को मैं ऑन ही रखती हूँ. फर्स्टली वी विल राइट द गिवन डेटा. यू ऑल्सो राइट विथ मी. आप भी आपका नोटबुक निकालो एंड स्टार्ट राइटिंग. फर्स्टली द ड्यूरेशन ऑफ द बॉयलर. नाउ दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट स्टिल राइट 6 hours is the duration.
राइट इट एज गिवन. पहले तो उसको नंबर दे दो. दिस इज द सॉल्यूशन फॉर 5 नंबर न्यूमेरिकल. गिवन 6 hours is the duration of boiler. Nextly क्या गिवन है? मीन स्टीम प्रेशर. होल लिखो वो सेंटेंस. ऑल आर राइटिंग. Yes, Yes, all are writing. Yes, ma'am. Okay. So after writing mean steam pressure equal to 12 bar, next line write down mass of steam generated, that is ms. Small ms is the notation. Value given is 40,000 kg. Mass of steam is 40,000 kg. Dryness fraction has a notation x. Small x is equal to 0.85. Then mean feed water temperature. So initially you can give the name as T1, which is 30 degrees Celsius. और उसके पीछे लिखो feed water. I will show you once we will write the given data my screen. Then write mass of fuel used, that is MF is equal to 4,000 kg. And its CV is given 33400 kilojoule per kg. And we have to find the value of FE. FE is equal to question mark. ME, equivalent evaporation, is equal to question mark. And boiler efficiency is equal to question. Now, I will stop sharing this screen. I will move towards my screen now. Just check whether the screen is visible or not. Yes. Is it visible now? yes, ma'am. I have written the given data. I am also solving with you. Okay. So, mean steam pressure is given 12 bar. Now do one thing. जो भी आप given data लिख रहे हो, उसी के आगे लिख के रखो that which data is needed from steam table. So write like this, from 12 bar. Arrow करके इस तरह से लिखो steam enthalpy. That is H. H की जो वैल्यू है वो आपको इस 12 बार से मिलने वाली है. वहीं पर लिख के रखो. दिख रहे सब लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then in tier T1, right, you will get value of HF1 from 30 डिग्री सेल्सियस. तो इससे क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टीम टेबल में आपको देखना क्या है. Okay. Now again I will stop here and I will share this screen. ये थोड़ा सर्कस हो जाएगा आज के दिन, बट एक बार आपको समझ में आ गया then every time we don't need to do this. अभी आप क्या करोगे बताओ? We need to write the data from steam table. Why? हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है? फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन एंड बॉयलर एफिशिएंसी. 3 ही फॉर्मूले हैं उसके. यस, एम आई ऑडिबल और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. सो अब यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास डेटा गिवन है. मास ऑफ स्टीम इज गिवन, मास ऑफ वाटर इज गिवन, फ्यूल इज गिवन. तो अगर आप ये फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन का फॉर्मूला देखते हो तो वी नीड H एंड HF1. सॉरी, यहाँ पे HF1 है, वो करेक्ट कर दो. तो H क्या है? व्हाट इज H? 12 bar. ऑफ व्हाट? Of water. एंथैल्पी ऑफ, अरे H Water इज द mass. एंथैल्पी ऑफ स्टीम. Steam. सी, ये फॉर्मूला देखो अभी. एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम हाईलाइटेड दिख रहा है. ये H जो Yes. है ये यहाँ पे इस फॉर्मूला में है. ओके. एंड
HF1 क्या है, जो वाटर हमने इनिशियली सप्लाई किया है बॉयलर को, उसकी एंथैल्पी है। ठीक है, अब मैंने लिखा था कि मीन प्रेशर जो है 12 बार स्टीम का, उससे हमें सारी एंथैल्पी की वैल्यू मिलेगी। अब फॉर्मूला है हमारे पास, हमें तो पहले H कैलकुलेट करना है। तो H इज इक्वल टू HF प्लस X इंटू HFG, राइट। तो मुझे HF और HFG की वैल्यू चाहिए एट विच प्रेशर, 12 बार प्रेशर। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्या करना है, स्टीम टेबल पे जाएंगे एंड वी विल चेक द वैल्यू ऑफ स्टीम एट 12 बार। पीछे गया आई थिंक 798.4 यहाँ HF। हाँ ओके, तो अभी यहाँ पे देखो ये 12 बार प्रेशर दिख रहा है सबको, सेकेंड लास्ट पे, सेकेंड लास्ट इज द 12 बार, राइट। तो उस प्रेशर में आपकी HF और HFG की वैल्यू क्या है देखो, राइट डाउन दैट वैल्यू। HF इज 798.4, सबको दिख रहा है यहाँ पे, Yes. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HFG, कैन एनीवन 198.4.3. टेल मी? ओके, so write down, 198.4.3. okay, so in your book write down at 12 बार, इस तरह से लिखो, at 12 बार HF is equal to 798.4 kilojoule per kg and HFG is equal to 1984.3 kilojoule per kg. Now, apart from this HF and HFG, we don't need anything in this numerical. Okay? अब और क्या स्टीम टेबल का काम बचता है, H. हमें एंथैल्पी ऑफ वाटर देखनी है HF1 एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए क्या करेंगे, टेम्परेचर बेस्ड जो टेबल है उस पे जाएंगे, दैट इज एट द स्टार्ट। अब यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट कॉलम इज द टेम्परेचर, वो केयरफुली देखना है पहले, नहीं तो प्रेशर ले लोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिख रहा है सबको, फर्स्ट कॉलम इज टेम्परेचर, यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस लिखा है। Yes. अभी इस 30 डिग्री सेल्सियस पे कौन सी वैल्यू देखेंगे आप लोग, HF और वाटर इज ओनली steam इन द देखेंगे. फ्लूइड फॉर्म, तो नो वही बता रही हूँ। अब ये 30 डिग्री सेल्सियस पे आपकी स्टीम नहीं है, ओनली वाटर है। यस, वाटर है ना। Okay. Yes. तो वो कौन से फॉर्म में है, ओनली फ्लूइड फॉर्म में है, Yes. नॉट इन द गैसेस फॉर्म। तो आपको सिर्फ क्या देखना है, HF की वैल्यू वहां पे देखनी है। So that is 125.7. 125.7. So 7. this much amount of heat is initially present inside the water. So write down that at 30 degrees Celsius, HF1 is equal to 125.7. Yes, समझ में आ गया सबको, Yes, ma'am. स्टीम टेबल कैसे देखना है? Yes, ma'am. Okay. Now, ये इतना ऐसा क्यों हो गया, ये ब्लैक क्यों दिख रहा है? अच्छा हाँ, स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes. हाँ, so what we have written at 12 bar HF is 798.4, HFG is this, at 30 डिग्री सेल्सियस HF1 is this। हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे आप जो कैलकुलेशन लिख रहे हो उसी के आगे उसका फॉर्मूला लिख के रखो, ताकि आपको क्या फाइंड करना है वो समझ में आए। एफई का फॉर्मूला क्या है, H minus HF1 upon 2257. This is the formula for FE. What is the formula for ME? क्या है चेक करो, MS H minus HF1 upon MS into 2257. करेक्ट है, राइट? एंड व्हाट इज बॉयलर हाँ, direct- एफिशिएंसी? मैम 2257 डायरेक्ट आएगा क्या ना, हुआ? MF क्यों आएगा? MF कौन क्यों सा आएगा मैम, डायरेक्ट 2257? 225? ये अरे ME का फॉर्मूला।
Okay, one change. I will just show you. Instead of this ms upon mf, I have used ma symbol. वो evaporation का ये है. ma is the ratio of ms upon mf. अंडरस्टूड ना? वो फॉर्मूला में मैंने आई थिंक हैंड रिटन लिखा हुआ है, आपके इसमें है तो देखो. आई थिंक वो मेरे इसमें मैंने लिखा है, आपकी पीडीएफ में नहीं होगा. सी अभी दिख रहा है क्या? देखो, हियर आई हैव रिटन दैट ma is equal to ms upon mf. क्लियर है? यस मैम. ओके, सो नाउ अब क्या क्या चाहिए आप लोगों को? वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन. तो उसका पहले लिखो. फर्स्ट इज द एफ ई. राइट डाउन वंस अगेन फॉर्मूला h माइनस hf1 अपॉन 2257. अब इसमें hf हमें डायरेक्टली मिल गया है. दिस इज hf1, सॉरी. hf1 is directly known to us, 125.7. We have to calculate the value of h first. So h is the enthalpy of wet steam, as the steam generated by boiler is wet. So क्या फॉर्मूला आएगा यहाँ पे wet steam का? HF plus HFG. अरे wet steam के लिए देखो, X HFG. HF plus X हाँ. HFG. करेक्ट. hf प्लस आ रहा है क्या मेरा? वेट hf प्लस x hfg. ओके, नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज. hf is 798.4 प्लस x कितना है? 0.85 इंटू hfg is 1984.3 and calculate the enthalpy of wet steam. क्या आंसर आता है बताओ अभी? 2485.05. 2485. 2485. करेक्ट. 2485.05. 05. 2485.05. यूनिट क्या आएगा सबका? किलोजूल किलोजूल पर पर केजी, केजी. क्योंकि हम इसमें मास कंसिडर नहीं कर रहे. ठीक है. नाउ ये एक हो गया, एक फर्स्ट आंसर. नाउ जस्ट पुट दिस h with this h weight is nothing but the h hour, जो enthalpy of steam है. Now put all the values in this formula Fe and calculate the value of Fe. Tell me the answer of Fe. 1.045. Yes, 1.045. 045. 1.045. अब सिंपल है, एक बार h कैलकुलेट कर लिया, so there is nothing remaining. Just you have to put the value of ms and mf, and if you multiply this Fe by the ratio ms into mf, you will get equivalent evaporation. But don't do that. Just write everything ms into h minus hf1 upon mf 2257. Calculate me. और हमेशा याद रखो, value of me is always greater than fe. कितना आ रहा है? Yes, what is the answer of me? कहाँ गए सब लोग? What is the answer of me? 10.45. Anyone? Only 10 answer is coming, I think. Just check once again. 10.453. 10. Oh, okay, correct. Sorry, correct answer है 10.45. अब इसका यूनिट क्या रहेगा? kg per kg of fuel, because this is mass of steam generated per kg of fuel. क्लियर है? मतलब आपने 1 kg फ्यूल यूज किया इस बॉयलर में, तो 10.45 kg of steam is being generated. Okay, now last answer calculate करो और just बताओ मुझे what is the formula, what is the answer of boiler efficiency? Whatever you have. हाँ बोलो. ये एमएफ में क्या कंसीडर करेंगे अपन? जैसे मास ऑफ स्टीम तो दिया हुआ जनरेटेड 40,000 kg. एमएफ में क्या कंसीडर करेंगे? क्या? नो, आई एम नॉट गेटिंग. क्या कंसीडर करेंगे मीन्स?
एमई के फॉर्मूले में जैसे अपना ms अपॉन mf है, तो मास ऑफ स्टीम हाँ तो दिया हुआ है जनरेटेड में, लेकिन mf में क्या हाँ कंसीडर करेंगे, वैल्यू कौन सी लेंगे बेटा mf में? दिया है ना, एमएफ इज गिवन, मास ऑफ फ्यूल 4000 kg, ओके, that is सॉरी, given, डिडंट no? नो दैट। Okay, ओके, no worry. Calculate the boiler efficiency now. 0.706. Correct. Okay, we will sum up now. Everyone, have you understood what we have done today? समझ में आ गया है कि सब सर के ऊपर से चला गया है? We have started from really basic, how to see the steam table, what are the types of steam, everything. And this is the simplest form of the first numerical. ऐसे नहीं आएंगे. This will contain few additional terms in that, like addition of all the accessories, वो भी आएगा. समझ में आ गया है सबको आज का पार्ट?